Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. Myself Alok Dwivedi. So guys, we were discussing about the nutrition in plants, and we have discussed the basic of nutrition in plants. And after that, modes of nutrition, where we discussed about autotrophic mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition. Then we discussed about nutrition in heterotrophic plants, where we discussed about parasitic plants, symbiotic plants, saprophytic plants. Then what is decomposition, insectivorous what is. And now we will discuss about how do green plants prepare food, then factors required for photosynthesis, site of photosynthesis, and steps involved in photosynthesis, replacing nutrients in the soil. So this is how your chapter will be finished of chapter 1 class 7 CBSE board. So let's discuss our further topics which were in chapter number 1. So how do green plants prepare food? So you must be knowing that green plants or organisms, those who are having the green pigment in their body, they basically require of light energy to prepare the food. It means they convert the light energy into the chemical energy for the processing of their food or the manufacturing of their food. So where this green pigment basically is found in those green plants, this is found in the chloroplast. This is found in the chloroplast. Like we have a structure and functional unit in our body that is known as cells, same as the special structure is found also in the plants known by chloroplast. So chloroplast contains chlorophyll, which is a unique green pigment. Plants prepare their food by the process of photosynthesis, as I have told you, and many times the green plants, those who are having the green pigment in their body, or the organism, those who are having the green, they basically produce their food or they process their food with the help of photosynthesis process. This green color pigment present in the chloroplast is responsible for trapping the light energy from the sunlight to initiate the process of making food in the plants. What does basically this chloroplast does? This chloroplast is basically responsible for trapping the light energy. It means if the chloroplast will not have a chlorophyll or the green pigment, the plant will not be able to trap the light energy from the sunlight as to initiate the process of photosynthesis. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एक बार मैं आपको हिंदी में बताता हूँ ये सारी क्या चीज़ है। जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल्स, इसी प्रकार बॉडी में जैसे हमारे बॉडी का हर एक सेल क्या हुआ है उसका एक पर्टिकुलर वर्क होता है, और सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज़ बोलते हैं। देन फर्दर अगर बिगर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसको आप ऑर्गन का नाम देते हो, यानी कि सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यूज एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर नोन एज ऑर्गन। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक। इसी प्रकार प्लांट्स के अंदर भी स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हो, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है आपका क्लोरोफिल कंटेंट। ये क्लोरोफिल कंटेंट होता कैसा है, तो ग्रीन पिगमेंट का होता है, यानी कि हरे कलर का क्लोरोफिल होता है ये आपका दिखने में। और ये ग्रीन जो पिगमेंट है ये बेसिकली यही रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के होने के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम ही है फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट के होने पर जो सिंथेसिस होगा, यानी जिस चीज़ का मैन्युफैक्चरेशन होगा या जिस चीज़ का प्रोसेसिंग होगी, सिंथेसिस मतलब मैन्युफैक्चर या फिर प्रोसेसिंग, तो लाइट की हेल्प से जो प्रोसेसिंग की जाएगी किसी चीज़ की, जैसे कि सिंथेसिस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करना, किसी चीज़ को बनाना। तो लाइट से क्या बनाया जा रहा है, तो लाइट से बनाया जा रहा है फूड आपका। कौन बना रहा है, तो ग्रीन प्लांट्स बना रहे हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है यही ट्रैप करता है, यानी यही इसको अपने तरफ खींचता है, अब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को जो कि सनलाइट से आती है, और फिर उसी प्रोसेस के थ्रू ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है मेकिंग फूड का, ये इनिशिएट हो जाता है। तो आई होप आपको ये पूरी स्लाइड समझ में आई है कि बेसिकली ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है। यहाँ पर यदि कोई डाउट है स्लाइड में तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक उसको पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज फॉर यू ओनली। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बेसिकली अब आपने देखा कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वाया फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यानी फोटोसिंथेसिस अगर कंप्लीट करनी है तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी होने पर ही फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली फुलफिल हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्लोरोफिल होना चाहिए, जो कैसा होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। प्रेजेंट कहाँ है, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सेकंड आपके पास लाइट होनी चाहिए। लाइट कहाँ से मिलेगी आपको, तो सन से मिलेगी, जो कि वाइटर रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड में। थर्ड आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जो कि क्रूशियल इनपुट है। देन वाटर क्या है, ये एब्जॉर्ब होगा बाय प्लांट रूट्स। देन फिफ्थ नंबर पे आपका टेम्परेचर, यानी कि ये 5 फैक्टर्स अगर आपके पास हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इजीली आपकी जो है इनिशिएट हो जाएगी, और आपका फूड जो मेकिंग प्रोसेस है
वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है कि कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं जब भी हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कंप्लीशन के लिए। तो इन फैक्टर्स को आपको जरूर मेंशन करना है कि दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड ड्यू टू दीज फैक्टर्स ओनली plants are able to photosynthesis or synthesize their food. नाउ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेसिकली ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है कि किस जगह फोटोसिंथेसिस आपका होता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, इजीली आप आंसर कर पा रहे होंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है। देखिए हर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल जहाँ होता है उसका नाम क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट, और बेसिकली इसी को हम बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये यूँ कहें कि ये जो क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोफिल है, ये बेसिकली मेजरली आपको कहाँ पे मिलेगा, सबसे ज़्यादा इसकी क्वांटिटी कहाँ मिलेगी आपको, तो ये मिलती है लीव्स में। कहाँ मिलती है, लीव्स पर। तो लीव्स ही क्या कहती है, मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाती है। हालांकि ये जो ग्रीन पिगमेंट है आपका, ये आपको, ये जैसे कोई ट्री होता है, ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए कोई ट्री है, ठीक है, ये ट्री बनाया अपन ने, तो ये कोई ट्री है, तो ट्री के हर एक पार्ट जो है, लगभग सभी पार्ट्स कुछ कुछ छोड़ के, ये जो आप मेजर जो ट्रंक होती है, जो आपकी स्टेम होती है, ये अगर काफ़ी बड़ा ट्री हो गया तो ये आपकी ब्राउनिश कलर की हो जाती है। अदरवाइज मैक्सिमम पार्ट्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के रहते हैं, है ना, ब्लू सॉरी ग्रीन कलर के रहते हैं। तो कहा जाता है कि जो ग्रीन है वो किसकी वजह से होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो यानी कि लीव्स के अलावा जो और भी ग्रीन पार्ट्स हैं आपके प्लांट के, वो भी फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट बेसिकली अगर बात की जाए कि मैक्सिमम किनका रोल होता है, तो ये लीव्स का होता है। इसीलिए हम मैक्सिमम बोला करते हैं कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। क्या बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर होता है आपको मैक्सिमम क्लोरोफिल कंटेंट मिलता है। दैट्स व्हाई वी कॉल द लीव्स एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट और द मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स के पास क्या होते हैं, टाइनी ओपनिंग्स होते हैं, जैसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये बेसिकली आपको लैमिना में मिलेंगे, जो कि ये क्या करते हैं, स्टोमेटा, ये जो टाइनी ओपनिंग्स हैं, यानी कि जैसे ये लीफ है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई, ठीक, ये लीफ है, तो इस लीफ में ऐसे टाइनी आपको यहाँ पर पोर्स मिलेंगे, ठीक है, टाइनी ओपनिंग्स मिलेंगे। ये टाइनी ओपनिंग्स क्या होते हैं, पीरियडिकली ओपन होते हैं, मतलब कुछ समय के बाद, कुछ समय के लिए खुलते हैं, ओपन होते हैं, कुछ समय बाद बंद हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द, ये होता है इसलिए कि जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैस पॉसिबल हो सके। जो रिक्वायर्ड गैस है फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा भी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या है, ये रिक्वायर्ड गैस है आपकी, यहाँ पर ये देखिए थर्ड पॉइंट आपका, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड गैस है, तो ऑक्सीजन आपको मिलता है इन बाय एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए आपका स्टोमेटा का रोल होता है। अब हर एक स्टोमेटा जो गार्डेड होता है, ये दो बीन शेप्ड सेल से गार्ड होता है, जिसे हम गार्ड सेल बोलते हैं। यानी कि बीन शेप, यानी जैसे आपने सोयाबीन का जो शेप देखा हो, तो वो बीन शेप यानी किडनी के शेप के जैसा ऐसा होता है, ठीक, इस प्रकार का आपको मिलेगा। ये इस तरह की गार्ड सेल्स आपको मिलेंगी, और ये गार्ड सेल्स काफ़ी थिकर वॉल्स की होती हैं और डार्कर इनकी ग्रीन कलर होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट आपको मेजरली फॉर्म में मिलता है, यानी कि मैक्सिमम मिलता है आपके यहाँ पर। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा के पास आपको क्या मिलता है, गार्ड सेल्स मिलती हैं। बेसिकली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो ये गार्ड सेल्स यानी क्लोरोप्लास्ट ही आपकी साइट ऑफ मेन फोटोसिंथेसिस है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। कोई डाउट यहाँ पर अगर परसिस्ट करता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट है आपका स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब हमने देख लिया कि मेजर साइट क्या है, अब देखते हैं ये फोटोसिंथेसिस कैसे अपने स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप आगे इनिशिएट कर दी है, और फैक्टर्स भी हमने देख लिए हैं कि फोटोसिंथेसिस के क्या क्या रिक्वायर्ड है जिससे कि फोटोसिंथेसिस फुलफिल हो पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जो रूट्स है, ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से, और इसको कहाँ भेजती हैं, लीव्स के पास भेजती हैं। यानी कि रूट्स का काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और इसको लीव्स तक भेजना। इसके बाद काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लीव्स के वाया लीव्स एंटर करना टाइनी पोर्स के थ्रू, जो कि आपका स्टोमेटा वर्क करता है। इसके बाद क्या होता है, क्लोरोफिल मेक्स द फूड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको वाटर मिल चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुका है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर फूड मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। ये किसके प्रेजेंस में करता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में करता है। और फूड एंड ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं एज अ एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जब भी फोटोसिंथेसिस का एंड होता है, रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो आपको फूड एंड ऑक्सीजन आपका प्रिपेयर मिल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट्स के लिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपको यहाँ पर मिला, वाटर आपको रूट एब्जॉर्ब करके देता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको स्टोमेटा वाया लीव्स मिल जाता है। फर्दर आप जब इसको इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट करते हो एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। देखिए वाटर यहाँ पर है, तो वाटर आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस पर आपको डाउट होना चाहिए कि सर वाटर कैसे मिला, जब यहाँ पर वाटर है तो आपको यहाँ पर वाटर मिलना ही मिल, ठीक है। तो ये है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस।
नाउ रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब अगर ये जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो कुछ मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इस तरह अगर कंटिन्यूअस प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, ट्रीज फॉरेस्ट भी बहुत हैं, अगर ये सभी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो बेसिकली सॉइल के अंदर आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए या फिर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि क्या सभी न्यूट्रिएंट्स, अगर ऐसा होगा तो क्या न्यूट्रिएंट्स एक टाइम पे आकर ख़त्म हो जाएंगे क्या? देखिए हाँ, ऐसा होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है किसी भी सॉइल के अंदर, किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर वो उसमें कमी पाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए जो आपके फील्ड होते हैं, जो क्रॉप फील्ड होती है, जो खेत होते हैं, वहाँ पर आप क्रॉप्स क्या करते हो, सीजन बाय सीजन वहाँ पर ग्रो करते हो। ठीक है, अगर आप सीजन बाय सीजन वहाँ पर ग्रो करते हो तो अब आप वहाँ से क्या कर रहे हो, न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हो। वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत मैक्सिमम रेट पे हो रहा होता है, क्योंकि आप सीजन बाय सीजन आप क्या करते हो, सॉइल को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ते हो, आप हर सीजन में क्रॉप लेना चाहते हो। तो ऐसे में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं क्वांटिटी में। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि आपने देखा होगा, फार्मर्स बेसिकली क्या करते हैं, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स का इनकॉर्पोरेशन करते हैं सॉइल में, यानी मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स को सॉइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं एज टू रिप्लेस द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप जैसे काउ डंग वगैरह हो गया, ये ड्राई ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसी उन सभी को जो है सॉइल में क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश हो जाए, दोबारा से फुलफिल कर ले अपनी अमाउंट को सॉइल के अंदर। इसेंशियल मिनरल्स होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, कुछ हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये सारे क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इसेंशियल मिनरल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फॉर द प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स जैसे कि कुछ ये आपकी हेल्प करते हैं रिप्लेसिंग में न्यूट्रिएंट्स के लिए, जैसे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं लेगुमिनस प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया के हेल्प से। ये होता क्या है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया ये रूट नोड्यूल्स में जाकर अपना शेल्टर बनाता है और वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन को क्या करता है, इजिली सिंपलर कंटेंट में चेंज करता है, जिससे कि आपका प्लांट उसे इजिली एब्जॉर्ब कर पाए और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फर्दर परपेचुएट कर पाए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल क्या चीज़ है, कैसे रिप्लेनिश करना है, ये आप समझ गए हैं। या अगर कोई डाउट आपको हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में कहीं पर भी आपको किसी टॉपिक पर डाउट हो तो इजीली आप उसे कमेंट सेक्शन में करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए वीडियो, जिससे कि उनको भी जानकारी मिले, उनको भी कोई डाउट हो तो यहाँ पर आकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और अपने स्टडीज़ को बेटर बना सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।